Okay, who will share the key learning of the last session? नहीं याद ना लास्ट सेशन क्या हुआ था? यस लवन्या. So the biggest learning I took was the knowledge doesn't much impact, but how much we have realized it uh, is the biggest thing that we need to know. And Hmm. uh, you also mentioned that knowledge is one thing, but how to acquire knowledge is वो the क्या गुटखा मत खा. महाराज ने मना किया है. यस. हाँ, गो ऑन. yes, knowledge is one thing, but how to acquire knowledge is the biggest thing that nobody is teaching, and that what we need to uh, hold on to. And you Hmm. told that if we stick to just three things, first is LRT, so learning, realization, and then transformation. So Hmm. yes, knowledge with realization. With realization is what we need to hold on to. And if everything, in our head, we are just filled with knowledge, but there's no realization, it's just a waste of time. So then also discuss the two aspects or the traits, which was first was the achiever and second was the activator. And Hmm. I personally think that I am much more aligned with the achiever than the activator. So So you found some trait of achiever in you. Yes. yes. Okay. Anybody else who would share only one key learning? Yes, Sanya. Hey Krishna Prabhuji Pranam. So basically, you shared that if we would have the realized knowledge, that would ultimately lead to the good decision. हम अच्छा decision ले पाएंगे तो हम action कर पाएंगे and जब वो action करेंगे तो उसका result भी good आएगा. That's a good learning for me also. I don't remember when we shared this, but good. Anybody else? Yes, Arav. हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम सक्सेस किसी का इमिटेट नहीं कर सकते, हम सबका अपना जर्नी होता है और अपना एंड गोल होगा. सो हम दूसरों से मोटिवेट हो सकते हैं बट दूसरों की जर्नी कॉपी करने की कोशिश नहीं कर सकते. दिस इज समथिंग जो मेरे को स्टक हुआ. So let's share that learning. That was really a key point of learning to us. Like it was not something which stuck us. Yes, this is something which I want to incorporate in my life. What was that learning? There were many things that we will always discuss in this 45 minutes, 1 hour. But एकदम जो यूरेका मोमेंट आता है ना वो किससे आया था? यस राध्या. One thing that I used to look towards as a weakness, I found it as a strength, which is achiever trait जो उन्होंने बताया था. तो मैं पहले तो उसको देखती थी कि मैं बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हूँ. दैट इज अगेन समथिंग टुवर्ड्स वीकनेस, बट मैंने उसको सीखा कि मैं कैसे उसको स्ट्रेंथ की तरह देख सकती हूँ. एंड आई फाउंड वन स्ट्रेंथ इन माई सेल्फ विच इज अचीवर. सो दैट इज वन थिंग दैट आई लर्नड अबाउट Good. सेल्फ. So that gave you a lot of strength, huh? या. Okay, good. A positivity at least. You felt positive that this is a strength in me and not a weakness in me. Something that you were considering as your weakness till now, you will now see that that's your strength. Okay. Anyone else who can share key learning, key takeaway, one single? Okay. So last message that we had, and my real intent to all of you in this session is not to teach you anything, not even the quality of the content कि क्या आपको पढ़ना है, but कैसे आपको सीखना है. That is the key point. What was just shared. How to learn towards transformation, which means the path of transformational learning. Because
if we don't transform, and if we learn, if we have the knowledge, and if we don't transform, what is that like? Anybody who will give some examples in this? We have learned, we have acquired the knowledge, and we have not transformed. Give an example, analogy in this direction. एक तो मैंने लास्ट टाइम दिया था कि एक टिकट खरीद लिया है लेकिन उसको ट्रैवल नहीं किया ट्रेन में, घर में आके तकिए के नीचे रख के सो गए टिकट को. So that is one analogy. We have acquired the knowledge, but we never traveled our path to that knowledge. So we have never realized that. और क्या हो सकता है ऐसा? हाँ, yes, अक्षत. The most basic example would be everyone knows कि exercise करनी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, but very little people are able to do it. Hmm. Yes. So we have the knowledge of yoga, but we never traveled the path of doing yoga. So will anything impact in the body? No. कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअली उसको डीपली एक्शन में नहीं लेके आए. यस, गोपी. हरे कृष्णा प्रभु जी, आई हैड अ सिमिलर एग्जांपल. मतलब हमारे पास दवाई है बट हम खा नहीं रहे उसको. यस, प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिंग दी बॉटल ऑफ हनी फ्रॉम आउटसाइड. तो वी डोंट हैव द टेस्ट ऑफ हनी unless we actually open the cap and take it inside our body on our tongue. So we all know there are two parts of life. One is just on a gross level we are doing it. Another is we actually absorbed it at the subtle level. यही बात है सबसे इंपॉर्टेंट, जो जीवन में कोई स्कूल नहीं सिखा रहा. ग्रॉस से ज्ञान को सटल में ले जा करके हर पोर में एब्जॉर्ब कर देना. उसके बाद ही उसका टाइम जितना भी हमने उसको दिया वो यूटिलाइज हुआ. हम लोग करते हैं एब्जॉर्ब, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर रहे हैं. हर व्यक्ति का अलग अलग एब्जॉर्प्शन लेवल होता है. वी ऑल हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंसंट्रेशन, एंड based on that everybody is absorbing. To increase that absorption is what we need to learn when it reaches to the stage of transformation. अभी भी जितना ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में आया है वो नॉलेज से ही आया है, और नॉलेज जितनी एब्जॉर्ब हो गई उतने ही चेंजेस आते जा रहे हैं, उतनी ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं. सो विच मीन्स नॉलेज इज देयर everywhere. We are acquiring knowledge. But if we increase the absorption, then our transformations or will increase. अगर नॉलेज पॉजिटिव होगी तो ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव होंगे. अब नॉलेज तो नेगेटिव भी हो सकती है, खराब नॉलेज भी ले सकते हैं हम लोग. सारी ही मटेरियल नॉलेज जो हम कहते हैं ये तो काम की नहीं है, उसको भी ले सकते हैं, तो उससे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी नेगेटिव होती है. तो इसीलिए तो अलग अलग तरह के लोग इस संसार में चल रहे हैं, क्योंकि जैसा जिसका ज्ञान है वैसे वो बन गया. जिस लेवल की उसकी एब्जॉर्प्शन थी उसी लेवल पे उसी स्पीड से उतना ही वो बन गया. सो एब्जॉर्प्शन, तो 2 points आर देयर, व्हाट टू नो एंड हाउ टू नो, है ना. तो यानी कि क्वालिटी ऑफ नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि नॉलेज क्या लेनी है, और दूसरी बात ये है कि उसको कैसे लेना है कि वो फुली एब्जॉर्ब हो जाए, ग्रॉस बॉडी से सटल बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए. जब तक वो बुक के ऊपर है, आंखों ने उसको देख लिया, पढ़ लिया, तो ये ग्रॉस है, आंखों ने पढ़ लिया, लेकिन माइंड में अभी वो नहीं गया, क्योंकि माइंड में कुछ और चल रहा है. तो हम कई पेज पलट लेंगे लेकिन उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आएगा. हैज एनीबडी ऑब्जर्व दिस एवर? है ना, मैंने भी किया है बहुत बार ऐसा. तो जब माइंड कहीं और चला जाता है, सिर्फ ग्रॉस बॉडी उसको देख पा रही है, तो उससे उसका नहीं होता है. और माइंड में चले जाने के बाद भी उसको डीपर कॉन्शियसनेस में उतारना, उसको आज बड़ी अच्छी बात बताई सानवी ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही, उसको अपनी हैबिट्स में उतार लेना. और हैबिट्स का मतलब क्या होता है? जब वो चीज सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है,
यानी कि हमें उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। आई जस्ट लर्न दिस होल थिंकिंग फ्रॉम सानवी 15 minutes बैक, कि किस तरह से हैबिट तो जब ही कहलाएगी हैबिट जबकि वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा चीज, which means we are doing that without knowing, because that has become a part of us now. So how do we create such beautiful, wonderful habits in our subconscious mind? How do we absorb those, कि अब उसको यही आदत पड़ गई है करने की? किसी ने बड़ी अच्छी बात बताई मुझे थोड़े दिनों पहले। आई शेयर दैट बिकॉज इट इज क्वाइट इन कॉन्टेक्स्ट टू दिस। वो कहते हैं भगवान को अपनी आदत बना लो। इट्स सच ए नाइस थिंग। मेक गॉड एज योर हैबिट। एनीथिंग दैट यू डू यू सी गॉड ओनली। वो हैबिट ही बना लो उनको अपनी, हर चीज में उनको जोड़ के चलो। तो किसी ने नहीं बताया आज तक कि हैबिट बना लेना भगवान को, बिकॉज वी आर ऑल लिविंग आवर हैबिट्स ओनली। हर चीज हम वही करते जा रहे हैं जो हमारी हैबिट बन चुकी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज को अपनी हैबिट ही बना लो। सो इसलिए हमको एब्जॉर्प्शन, जो नॉलेज की हम बात करते हैं, उसको ला करके अपनी कॉन्शियसनेस में, अपनी हैबिट्स में डिसॉल्व करना है। सो टुडे आई मेड अ लिटिल प्रेजेंटेशन फॉर दिस ओनली। एनीबडी हु कैन जस्ट play that. I sent a PDF this evening. Yes. This is the first page. We can go to the yes. So someone can read this and explain this. रेनू से स्टार्ट करेंगे। यस यस, यू आर अवर गुरु माँ। एक कोई और। ओके अक्षत। In a distracted world, real mystery belongs Mastery. mastery, sorry, belongs to those who can deeply focus, contemplate, and transform their inner world. True education is not just knowing more, it is about becoming more. Yes. Now, would you like to explain what it means? I'll take a minute, just a second. Okay. यहाँ पे प्रभु जी बताया गया है कि रियल मास्टरी के बारे में बताया गया है कि दैट इज कि जब हम नॉलेज को एक्चुअली कॉन्टेम्पलेट करते हैं, उस पे उससे अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपने इनर वर्ल्ड में उसको लेके आते हैं। ट्रू एजुकेशन, ट्रू नॉलेज इज नॉट जस्ट नोइंग मोर, कि बस जान लिया ये, अच्छा हाँ मुझे पता है। नो, इट्स अबाउट बिकमिंग मोर। उसको अपने अंदर हम बन गए वो नॉलेज, जैसे Yes. अपने एक्शन में ले आए। Yes, living that knowledge, not Right. just knowing it, but living. इसीलिए गुरु को बोलते हैं ना, लिविंग भागवत है वो। लिविंग भागवत का मतलब वो नॉलेज उन्होंने जानी नहीं है, वो नॉलेज बन गए हैं अभी। दे आर लिविंग दैट नॉलेज। तो ऐसे ही जो ज्ञान हम ले रहे हैं उसको हमें उसका लिविंग फॉर्म बनना है, उसका दैट नॉलेज personified. Anybody else who would like to just extract something from this distracted page? Yes, Anya. तो मुझे आपका वो वाला एग्जाम्पल याद आ रहा है अबाउट दैट ट्रू एजुकेशन इज नॉट कि गड्ढा थोड़ा सा खोदो बट उसमें बहुत डीप जाओ, लाइक कंडेंस्ड मिल्क जैसे उससे। प्रपात जी रबड़ी का एग्जाम्पल देते हैं इसमें। दूध को हम पानी भी बना सकते हैं, पानी मिला करके, और दूध को फेट फेट करके उसको रबड़ी भी बना सकते हैं। तो हमें रबड़ी की तरह देखना है, हर कॉन्सेप्ट को कंडेंस करना है।
उसको डाइल्यूट नहीं करना। तो ट्रू एजुकेशन इज नॉट नोइंग मोर बट बिकमिंग मोर, absorbing that in our consciousness in such a way that we have become living knowledge. We actually become comfortable with that knowledge कि हमें वो लाइफ जीना, हमारी सेंसेस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, हमारे माइंड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल सात्विक मूवमेंट जब हमने स्टार्ट किया तो उससे पहले हमारा फूड हैबिट्स बहुत अलग था। हमारा तो छोड़ो सुबह का ही अलग था, मैगी खाती थी रोज। तो लेकिन जैसे ही वो नॉलेज मिली, तो नॉलेज की वजह से माइंड को टेम कर लिया, माइंड को नॉलेज ने टेम कर लिया। एंड नाउ इट इज नॉट अ नॉलेज ऑफ जस्ट नोइंग व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट, बट इट इज बिकम द टेस्ट बर्ड्स ओनली लाइक दैट, कि वो वही अच्छा लगने लग गया फिर। दैट इज बिकम अ पार्ट ऑफ दैट पर्सन, सात्विक मूवमेंट personified. सो अच्छा, नॉलेज माइंड को टेम कर सकता है क्या? क्यों कर सकता है वृंदा? अम, क्योंकि माइंड से ऊपर इंटेलिजेंस होती है, तो अगर इंटेलिजेंस को उसका फीड मिल जाएगा तो वो फिर माइंड को टेम कर सकता। और माइंड से नीचे क्या होता है? सेंसेस। यस। सो सेंसेस से ऊपर, हायर देन द सेंसेस इज माइंड एंड हायर देन द माइंड इज इंटेलिजेंस। सो डेफिनेटली इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक तो जो सैनिक होते हैं जो जमीन पे वॉर कर रहे होते हैं, और एक होते हैं अधिरथी महारथी, है ना? तो वैसे ही हमारा जो ये है इंटेलिजेंस, वो तो अधिरथी है, तो वो माइंड को तो इजीली कंट्रोल कर ही लेगा। इसके तो एक साथ में 1000 तीर निकलते हैं, इट्स महायोद्धा, है ना? सो इट कैन इजीली कंट्रोल माइंड। सो अगर हमारी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स माइंड में ही छुपी हैं, सारी मेंटल प्रॉब्लम्स ही तो है सारी, अदरवाइज तो भगवान जो इसकी दवाई है उसको नाम नहीं देते मंत्र। भगवान ने जो प्रॉब्लम का सलूशन दिया है एक ही दिया है, वो दिया है महामंत्र। चैतन्य महाप्रभु यही बोल गए ना, ये मंत्र पढ़ लो बस। यानी कि मन को तारने का, यानी कि मन में ही प्रॉब्लम है, इसका मतलब उनको पता था कि मन की प्रॉब्लम है ये, और कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो मन की प्रॉब्लम को, अगर मन की प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन यानी कि नॉलेज में है। और नॉलेज जब भी मन को उतार पाएगी जब वो रियलाइज्ड नॉलेज होगी, जब वो एब्जॉर्ब्ड नॉलेज होगी। चैंटिंग भी जब भी कर पाएगी जब वो एब्जॉर्ब चैंटिंग होगी, ध्यान पूर्वक कर पाएंगे। तो हर चीज एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करती है हमारी लाइफ में। हमारी एक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन या उसकी डेप्थ हमारे एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट वी आर डूइंग, इट इज इम्पॉर्टेंट हाउ डीपली एब्जॉर्ब्ड वी आर while we are doing what we are doing. जैसे मैं कई बार कहता हूँ, कोई तुलसी महारानी को प्रणाम करता है जिस टाइम पे, या किसी भक्त को भी प्रणाम करता है, तो कितने मैकेनिकली हम सब कुछ कर लेते हैं। हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम माता जी, ओके हो गया। तुलसी महारानी का करना है क्योंकि ये जमीन है, ये मेरा माथा है, ये लग जाना चाहिए बस, ये हो गया तुलसी महारानी का प्रणाम। तो क्या हमने एब्जॉर्प्शन से तुलसी महारानी से प्रेयर्स करी, उनको प्रणाम किया, उनसे उनके लिए क्या फीलिंग है आपकी उस टाइम पे? इज दैट एब्जॉर्प्शन देयर? एंड दैट एब्जॉर्प्शन विल नॉट कम कि हम रीडिंग के लिए एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हम वी विल बिकम अ वेरी डीप एब्जॉर्ब पर्सन। एब्जॉर्प्शन इज अ हैबिट। We need to start to know how to live in the moment, how to live all the time in that moment, what we are doing, and concentrate this mind only in that, and not thinking about the past and not thinking about the future. Surrender everything to Krishna, the past as well as the future, and live in that moment. Then we will be able to live an absorbed living. एब्जॉर्प्शन जब ही आएगा जब हम मोमेंट में जीना सीखेंगे। देर आर लॉट्स ऑफ बुक्स रिटन ऑन दिस एंड कृष्णा हैज आल्सो सेड दिस इन भगवत गीता। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मोमेंट में जीना सीखें, क्योंकि दोनों चीजें हमें बिलोंग ही नहीं करती, ना पास्ट ना फ्यूचर। एक्चुअली तो प्रेजेंट में हमें बिलोंग नहीं करता, बट वी हैव टू स्टार्ट लिविंग इन द मोमेंट सो दैट वी कैन हैव अ एब्जॉर्ब्ड लिविंग। तो
और कौन बताएगा इस पेज को, ताकि हम इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें? लावण्या, would you like to share your learning from this page? Yes. Yes. So I was focusing on the word distracted. So it's in the world where we are again so distracted, focusing outward, living again this outward and inner world is a distracted world, and inner world are two different extremes where we are hanging on. हम बाहर, like if we are uh, seeing the outer world, we are so distracted, but little do we know that if we but in the distracted world, we feel like if we see outward, we can become master of the master. But real mastery here, who is building their inner world, and by focusing uh, and contemplating and transforming what their inner knowledge is, or the inner world is. So yes, as we all are studying and contemplating, that true education is not knowing more, but becoming more. Yes. तो The कोई भी key to कॉन्सेप्ट है I तो think it's very हम्म easy to say that build up inner world, but being in that or constructing within the inner world, I personally feel that I'm still focusing that how to fit in the outer world also. So again, I'm in the distracted world still. हम्म okay, anyone else? Vrinda, what is your understanding on this? I was thinking, पता नहीं मैं कहाँ से क्या सोच रही थी, but I was thinking जैसे हम बोलते हैं कि action speaks louder than words. तो how much ever we can know and how much ever we speak, but if we actually practice those principles, then with that pure character and हमारी लाइफ में भी बहुत डेप्थ आ जाएगी. So with that pure character and deep consciousness, we can make our life also more valuable, and then we can impact others also if we transform ourselves. So our actions will stand out. If we deeply contemplate on each thing, then we can give depth to our life. And second thing, I was thinking that this is the difference between an ordinary person and an extraordinary person. This is what differentiates people according to their depth and how much they give their heart and to know to know about it and then to implement it also in their life. So the biggest difference between an ordinary person and the great sages is the level of their concentration. कितने डीपली वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और कितने डीप, जितने वो डीपली कॉन्सेंट्रेट करेंगे उतना ही डीपली उनका एब्जॉर्प्शन होगा, जितना एब्जॉर्प्शन होगा उतना जल्दी वो ट्रांसफॉर्म होकर के सेजेस बन गए. So their knowledge did not help him that much, as much as their level of concentration on that knowledge helped them. Of course, the knowledge was pure, but जो लोग ऑर्डिनरी हैं वो सेम नॉलेज पढ़ने के बाद भी ग्रेट सेजेस नहीं बन पा रहे, क्योंकि वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे उसके ऊपर. एंड इन दिस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड द बिगेस्ट चैलेंज इज टू कॉन्सेंट्रेट. आज से कुछ सालों पहले, 20-30 साल पहले आसान था. और योगीज पहले क्या करते थे, कहते थे कि उस टाइम पे भी कहते थे, जो राजनाथ स्वामी महाराज की बुक है जर्नी होम, उसमें वो कहते हैं कि ही वेंट टू दिस केव्स के अंदर जाकर के देखते थे कि जो ये होते थे हमारे सेजेस, उसमें जाकर के कंसंट्रेट करते थे, क्योंकि उनको शोर नहीं चाहिए था बाहर का, और सिंपल फूड खाते थे ताकि उनकी कंसंट्रेशन बची रह जाए. अपनी कंसंट्रेशन को कंजर्व करने के लिए देयर वर सो मेनी एक्टिविटीज यूज्ड टू बी डन एट दैट टाइम. और वो भी उस टाइम पे जिस टाइम पे इंटरनेट भी नहीं था, फोन्स भी नहीं थे, तब भी उनको लगता था बहुत शोर है बाहर. तो उनके परिवार भी नहीं थे, कोई बच्चे तंग करने वाले नहीं थे, बीवी तंग करने वाले नहीं थी, वो ये योगीज हैं सारे. फिर भी कहते हैं यहाँ बहुत शोर है, मेरी आंखें खुल जाती हैं तो मुझे कुछ दिख जाता है यहाँ पे. तो इसका मतलब ये डिस्ट्रैक्शन है. हाँ. और हमारा क्या हाल है आज की डेट में?
किसी को बोलो ना इंस्टाग्राम बंद कर दो, हाँ करेंगे एक दिन, इंस्टाग्राम ही नहीं छूटता। तो डिस्ट्रैक्शन को हमने पहना हुआ है अपनी लाइफ में, बिल्कुल वी आर वियरिंग डिस्ट्रैक्शन लेफ्ट राइट सेंटर। हमारे सारी लाइफ पूरी डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है, एंड इन दैट डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड हम लोगों को कुछ बनना है इसमें। हाउ इज इट पॉसिबल हम कुछ बन पाएंगे? क्योंकि हम किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे। और अगर किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो जितनी भी नॉलेज आएगी वो टक्कर खा के बाहर गिर जाएगी, अंदर तो जाएगी नहीं। अंदर नहीं जाएगी तो हम कितनी भी किताब पढ़ लें, कितने भी हम सो कॉल्ड कह लें हमने 10 घंटे दिए इसको, लेकिन वो इफेक्ट तो कुछ भी नहीं करेगी। सो मोरलेस हम लोग को सबको ये तो पता है कि क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड। आई डोंट थिंक एनीबडी एटलीस्ट इन दिस ग्रुप इज रीडिंग रॉन्ग थिंग्स। सब अच्छी चीजें ही पढ़ना चाहते हैं और पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस इन दिस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड, to design the effectiveness of that needs to be learned properly. It's a very big challenge. गृहस्थ में रहते हुए पहले फैमिली की, अगर फोन और ये ना हो तब भी फैमिली में इतनी डिस्ट्रैक्शन है, हर वक्त घंटी बजती रहती है, कोई जोमेटो आ गया तो कोई ये आ गया कोई वो आ गया, हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो उसके बाद फोन बजते हैं तो उसकी डिस्ट्रैक्शंस हैं। वी नो ऑल दीज डिस्ट्रैक्शंस, सो दिस इज अ सुपर डिस्ट्रैक्टेड planet we are living in right now, and इसमें जीतने वाले वही लोग हैं जो इस डिस्ट्रैक्शन को जीत लेंगे। those who are going to master focus, concentration, those who are going to master deep contemplation, and those only then they will be able to transform their lives, and they will be able to be really peaceful and successful in this life. Otherwise तो हमारी distractions ही हमको बना रही हैं। We are becoming what our distractions are making us. We are totally in the hands of a distraction monster. So इसलिए हमको ये बात को बहुत डीपली रोज रियलाइज करना है। हाउ टू मेक माई सेल्फ, वेर इज माई केव? We have to create a cave for ourselves every day. जैसे योगीज पहले केव बनाते थे ना अपनी, कि मुझे कोई शोर नहीं चाहिए, मुझे कुछ दिखना भी नहीं चाहिए। वो केव कहाँ पे? जिस केव में जाकर के हम लोग डीपली फोकस कर सके, कॉन्टेम्पलेट कर सकें और इस नॉलेज को एब्जॉर्ब कर सकें। तभी हम लोग इसको जानने के बजाय वी विल बिकम दिस विल बी द प्रोसेस। सो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमको अपनी लाइफ में केव बनानी है। आ रही है समझ में ये बात केव वाली? One person, there was some athlete, or he said कि no, there was not athlete, मैं अच्छे से याद नहीं है, चाइनीज था कोई। वो कहते हैं कि if you want to master anything, you just need to lock yourself in one room without any phone, just take that knowledge with you, and your door opens, you just get enough food for the day, जितना खाना आपको खाना है वो खाना मिलेगा बस, और आपने बंद कर दिया उसको। इसके अलावा कोई इंटरेक्शन आपकी किसी दूसरे इंसान से नहीं है पूरे महीने के लिए। हाँ वृंदा, क्या क्या बोल रहे हो? मैं बोल रही हूँ कि मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अगर मैं अपने आप को एक रूम में रखूँ तो मैं तो सो ही जाऊंगी। मतलब चाहे मैं अपने आप को सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर रखूँ, बट माइंड जब तक उसको नहीं पता होता कि हाँ मुझे करना है, तो मतलब जब तक कि पूरी अच्छी विल नहीं होती कि यस आई हैव टू डू, तो चाहे मैं अपने आप को रूम में भी बंद करूँ, मैं उसमें भी आई विल फाइंड वे टू एस्केप आउट। यस, बट नॉलेज ही विल को भी क्रिएट करता है वृंदा, क्योंकि विल जो पार्ट है वो माइंड का पार्ट है। knowledge is higher than mind, and hence knowledge is higher than will also. So even if you sleep initially, once you get that knowledge, you will stop to sleep and you will get that will from knowledge only. Knowledge has higher powers. So
that Chinese person said, if you want to master anything, just lock yourself in a room without any phone. I'll send in the group when I find that. And just have enough food to eat and just keep doing reading and practicing that one skill, nothing else. So वही केव बना लिया ना उसने अपना इस मटेरियल वर्ल्ड में भी. मेकिंग द केव इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे. आ रहा है केव समझ में सबको? जानवी, व्हाट इज द केव ऑफ टुडे? नहीं, क्या समझ में आया केव के बारे में? केव का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? I was thinking कि आप अभी समझाओगे, so I'm just अच्छा ठीक है. राधे, आपको समझ में आया केव का मतलब क्या हुआ? थोड़ा बहुत जैसे केव क्या होता है? आपको केव पता है वैसे क्या होता है केव? गुफा. यस, ऑल डार्केंड एरिया इन द सेंस जहाँ पर कुछ डिस्ट्रैक्शन ना हो और हाँ, कुछ और ना हो इंस्टेड ऑफ मी एंड माय वर्क. यस वर्क. आप लोग ऐसा करते भी होंगे ना, जब फाइनल एग्जाम आ रहा होता है जिस टाइम पे, और नेक्स्ट डे एग्जाम होता है, तो उस टाइम पे केव बना करके सारा कुछ करके अपने आप को यूं बंद कर लेते हैं, अब ये बस, अब मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए. होता होगा ना ऐसा? दैट इज केव. सो वो हमें सिर्फ एग्जाम वाले दिन लास्ट डे नहीं बनाना. कैन वी मेक दैट एवरी डे फॉर 2-3 hours and absorb something very meaningful inside in those 2-3 hours? That is only what is making us. वो 2-3 घंटे हमको वो बिल्ड कर रहे हैं जो नॉलेज हम ले रहे हैं. So that is cave, and that cave we have to create every day. एकदम isolated place where nobody comes, nobody disturbs, and only you and your knowledge is there. शची, आपको समझ में आया केव क्या होता है? शची को आवाज जा रही है मेरी? यस प्रभु जी. किसको केव बनाओगे आप घर में? अपने रूम को. यस, अपने रूम को केव बना लो. कुछ टाइम के लिए ऐसा लॉक कर दो कि नहीं, इस टाइम पे आई एम डीपली एब्जॉर्ब्ड इनटू समथिंग. लॉक मत करो, लॉक करके तो जैसे उसने बताया, क्या पता सोते ही पाओगे थोड़ी देर के बाद. लेकिन 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 ये बोल दो कि हाँ, मुझे आके चेक भी करते रहो कि मैं पढ़ रही हूँ ना. बट जस्ट कॉन्सेंट्रेट वेरी डीपली. गो डीप, माइल डीप, माइल डीप, माइल डीप इनटू वन कॉन्सेप्ट. ठीक है केशव, केव समझ में आ गया? इस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड के अंदर हम सबको रोज एक केव बनाना है 2-3 घंटे का. तब जाकर के हम लोग डीपली फोकस किसी चीज पे करेंगे, कुछ एब्जॉर्ब्ड होगा, अंदर जाएगा, और जाकर के हमारे लाइफ में, हमारे एक्शंस में आएगा और हमें ट्रांसफॉर्म करेगा. देन वी विल बिकम दैट नॉलेज. देन विल बिकम द लिविंग personified version of that knowledge. That is really like जैसे हम लोग को खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे जाना पड़ता है, हर जगह पे अपने अपने काम के लिए जाना पड़ता है ना. एब्जॉर्प्शन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? एब्जॉर्प्शन के लिए केव में जाना पड़ेगा. जहाँ पे शोर हो रहा होगा वहां पे हमारे को, हमारा अटेंशन काम ही नहीं करेगा. सो दैट वाज द फर्स्ट पेज कि डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में मास्टरी कैसे की जाती है. सेकंड पेज, ओ ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पतंजलि योग सूत्र that teaches us that control over the mind is the root of true empowerment. योगस चित्त वृत्ति निरोधः. इसका मतलब क्या होता है? योगस मतलब योग का मतलब क्या है? चित्त मतलब चित्त क्या होता है? अच्छा बताइए, किसको पता है कि चित्त क्या होता है? नॉलेज. नहीं. कौन बताएगा? चित्त, चित्त तो वर्ड यूज करते ही है ना हम लोग कितना. सच्चित आनंद में भी चित्त करते हैं.
Yes, Gopi, you're saying something? मतलब मेरे को दो चीजें आ रही है माइंड में, एक तो कॉन्शियसनेस और दूसरा कि महाराज जी बताते हैं द पार्ट ऑफ आर अंतःकरण जिसमें हमारे सारे पास्ट इम्प्रेशन स्टोर होते हैं, तो आई डोंट नो विच वन यस, इज। यस, यस, वो अंतःकरण जो होता है वो चित्त होता है हमारा. And that antakaran is actually combination of mind, intelligence, and ego. All the subtle body is that only. तो वो जो चित्त है उसमें सबसे जो हमारा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है वो मन है, इसलिए इसमें माइंड को पकड़ा है हमने. योगस चित्त, यहाँ पे चित्त का मतलब मन है. योगा से चित्त यानी कि मन, वृत्ति, वृत्ति का मतलब होता है फ्लक्चुएशंस. फ्लक्चुएशन मतलब भाग रहा है, इधर उधर भागते रहता है हमेशा, मंकी माइंड. तो निरोध, निरोधा का मतलब है उसको रोक लेना, उसको कंट्रोल कर लेना. वही योग का मेन पर्पस है. योग का मतलब है मन की फ्लक्चुएशंस को रोक लेना. देयर इज अ वेरी नाइस बुक, दिस वन, द पतंजलि योग सूत्र. इसमें 195 सूत्रास हैं. अब हम जो मटेरियल नॉलेज लेते हैं स्कूल कॉलेज में उससे तो बहुत अच्छा ये नॉलेज ले लें, ताकि हमारे को ये तो पता लगे कि हमारे माइंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके लिए भगवान भी मंत्र देके जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए, उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए, मंत्रा में ही लगानी है अगर वो एब्जॉर्प्शन, वो लगाने के लिए किसी महर्षि पतंजलि ने कुछ नॉलेज दी है कि इसको कैसे कंट्रोल में की लिया जाता है. तो अगर वो नॉलेज वो कंट्रोल में आ जाती है तो हम लोग उस एब्जॉर्प्शन को कहीं भी यूज कर सकते हैं. फिर जो भी हम करना चाहते हैं जीवन में, हमारे हमारे और हमारे सक्सेस के बीच में माइंड ही खड़ा हुआ है. लाइफ के किसी भी कार्य की सक्सेस के बीच में माइंड ही खड़ा हुआ है. तो पतंजलि योग सूत्र इज इंटायरली बिल्ट ऑन दिस ओनली. तो कैसे अपने माइंड की फ्लक्चुएशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं. सो योगस चित्त वृत्ति निरोधः. व्हेन द माइंड बिकम्स काम. अब ये देखिए, ये हम लोग जो अपना तीन वो बनाए ना कि लर्निंग करना, रियलाइजेशन करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना, ये जब कब होगा? ओनली व्हेन द माइंड बिकम्स काम, लर्निंग बिकम्स प्रोफाउंड. तब लर्निंग्स होंगी हमारी. माइंड लिखने के लिए भी, नोट्स बनाने के लिए भी तो पहले माइंड तो शांत होना चाहिए. मैं हर हफ्ते ये हफ्ते में 2 दिन ये भेजता हूँ कि प्लीज शेयर योर डीप नोट्स इन द ग्रुप. सबसे इग्नोर्ड मैसेज होता है वो मेरा. परफेक्टली इग्नोर्ड. तो वो क्यों होता है? क्योंकि माइंड अभी काम ही नहीं है वो सब करने के लिए. वैसे नोट्स बनाने के लिए काम माइंड तो होना चाहिए. अभी तो माइंड कहाँ कहाँ भाग रहा है. और जब वो काम माइंड होगा तो रियलाइजेशंस होंगी, दे विल बिकम ट्रांसफॉर्मेशनल, एंड लाइफ इटसेल्फ बिकम्स अ वर्क ऑफ आर्ट. तब लाइफ चेंज. कितने दूर है, देखो कितने सारे स्टेप्स बाकी हैं अभी. लाइफ को एक मास्टरपीस बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लानी होंगी पहले. ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएंगी? रियलाइजेशन से आएंगी. रियलाइजेशन कैसे आएंगी? कुछ नॉलेज की लर्निंग करेंगे तो आएंगी. नॉलेज की लर्निंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? कौन बताएगा? नॉलेज के लिए क्या करना, आरव? इंटरनलाइज करना पड़ेगा उसको. नहीं, अभी जो हमने सीखा देखो, अभी भी माइंड कहाँ है देखो. माइंड बिकम्स काम, पहले माइंड को काम करना पड़ेगा. पहला स्टेप ये है. योगश चित्त, ये लास्ट लाइन पढ़ो देखो. व्हेन द माइंड बिकम्स काम, लर्निंग बिकम्स प्रोफाउंड. फर्स्ट स्टेप है माइंड को काम करना, दूसरा स्टेप है लर्निंग लेना, तीसरा स्टेप है रियलाइजेशन लेना, चौथा स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन आना. सब कुछ अपने आप हो जाएगा, पहले माइंड काम होगा तो. क्यों वृंदा? ऐसा है कि नहीं है? माइंड काम होने से चीजें ठीक होंगी. अभी एक आपने यही यही बोला ना, मेरा माइंड ही कंट्रोल में नहीं है, तो फिर दूसरा क्या होगा? अब आप सोचो, आप ऑलरेडी इतने इंटेलिजेंट हो, इतना कुछ कर रहे हो, इतने ट्रांसफॉर्म हुए हो, अगर ये माइंड कंट्रोल में आ जाए तो कितना स्पीड बढ़ जाएगा. तो गॉड हैज गिफ्टेड यू विद सो मच एंड टेकन वन थिंग फ्रॉम यू. अब आपने अगर उस पर विक्ट्री पा ली तो कितना आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकता है इन टर्म्स ऑफ योर पीस.
in terms, that is the only definition of success, is you're peaceful with whatever is happening. Yes, Rinda. एक क्वेश्चन था कि माइंड पीसफुल होएगा तो हम लर्निंग कर सकते हैं, और लर्निंग से ही माइंड पीसफुल होएगा। मतलब अगर हम लोग के पास वो नॉलेज होगी तो हम अपने माइंड को टेम कर पाएंगे, और माइंड टेम होगा तो हम नॉलेज दे पाएंगे। तो इसको इसे सब माइंड टेम होगा तभी हम उस लर्निंग ले पाएंगे, लेकिन जब तक माइंड टेम नहीं होगा तब तक लर्निंग नहीं मिलेगी। ऐसे कह रहे हो? देखो, हमारे पास ना लाइफ में इन सबसे ऊपर, माइंड से ऊपर और इंटेलिजेंस से ऊपर हमारे कुछ कर्मास चल रहे हैं। हम्म हमारी कार्मिक बैंक चल रहा है। तो somebody in our life comes who inspires us, who helps us। हम लोग ये सब अपने आप कभी नहीं कर सकते। nobody wins alone। somebody comes in our life who empowers us and he gives his shakti to start somewhere। तो ऐसा ही हुआ ना, महाराज ने आकर के शक्ति दी तब तो हो गया। ये सारी वीकनेस तो थी ऑलरेडी, माइंड भी वीक था, इंटेलिजेंस भी वीक थी, लेकिन somebody came and he gave his own शक्ति टू मेक श्योर कि इन सारे डिफेक्टेड पीसेस के अंदर भी कुछ चला जाएगा, है ना। तो ऐसे हम लोगों को एक विश्वास रखना है कि मेरी कैपेसिटी में तो नहीं है ये सब उलझनों को सुलझाना, बट somebody will come, somebody is organized by Lord, it's my relationship with Lord, Lord is seeing me and he will organize somebody who will make sure that आपके नॉलेज आपको मिल रही है और आपका माइंड धीरे धीरे काम भी हो रहा है, और जितनी नॉलेज मिलती जा रही है काम होता जा रहा है। माइंड इतना काम हो गया कि वो नॉलेज लेने के लिए रेडी हो गया कुछ हद तक। दिस इज ऑल कार्मिक। दैट वी आर टॉकिंग टुडे अबाउट दिस श्लोका योगश चित्त वृत्ति निरोधः, जो कि हम इस्कॉन को फॉलो करते हैं। उसके बाद आज हमारे सामने पतंजलि योग सूत्र का एक ये आ गया, सूत्र आ गया। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस्कॉन में तो कोई फॉलो नहीं करता इसको, है ना। तो ये भी तो कोई भगवान की कृपा से ही हो रहा है ना। ये भी तो कोई टाइम आ गया है कि हाँ, ये वाली स्किल को या ये वाली नॉलेज को ले करके हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अदरवाइज इतने सालों तक हम लोग माइंड को एब्जॉर्प्शन में नहीं ला पाए तो फिर क्या फायदा होगा। तो इट्स ऑल कृष्णा हु एम्पावर्स दीज सिचुएशंस। सो उन पे बिलीफ हमेशा रखना कि वो करेंगे। माइंड इज मच लोअर देन इंटेलिजेंस, बट इंटेलिजेंस इज मच लोअर देन कृष्णा। तो वो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं हमारी लाइफ में। देखो ना, हम ये तो सारी लॉजिकल बातें हो गई ना कि माइंड से हाय ये है, ये है, ये तो पूरा का पूरा डायग्राम हो गया। हाँ, बट जो भी हमारी लाइफ में सिचुएशंस बन रही होती हैं, इन सबसे बियॉन्ड बन रही हैं। रोज तो मिरेकल हो रहे हैं, तो ये तो छोटा सा मिरेकल है जो आप मांग रहे हो। भगवान तो कुछ भी मिरेकल कर सकते हैं। तो इसलिए yes, with the belief that today I am going to read with full concentration, you do that and Krishna helps। कुछ ड्रॉप बाय ड्रॉप माइंड पे जाकर के गिरता है, माइंड कंट्रोल में आता है और कंसंट्रेशन देता है वो। तो ये ऐसे ही होगा। सो इट इज नॉट सो मच ऑफ अगेन चिकन स्टोरी। ओके, तो और किसको समझ में आ रहा है ये कि अगर हमें अपनी लाइफ को मास्टरपीस बनाना है तो हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा अपनी लाइफ को पहले, और ट्रांसफॉर्म करने के लिए रियलाइज करना होगा किस चीज को, किसी नॉलेज को रियलाइज करने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप है अपने मन को शांत करना होगा। अगर 4 स्टेप्स को अगर आप बनाओगे, इसके अंदर ग्राफ बनाओगे, नेक्स्ट टाइम प्लीज अपने नोट्स में प्रेजेंट कर सकते हो। मैंने ग्राफिकल नहीं बनाया, लेकिन आप लोग बना सकते हो ऐसा अपने, अगर नोटबुक सामने है तो बना लो ऐसा। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज माइंड कंट्रोल। सेकंड स्टेप उसके बाद डीप लर्निंग। थर्ड स्टेप डीप रियलाइजेशंस। फोर्थ स्टेप डीप ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये है। नेक्स्ट पेज आप चलोगे तो उसमें शायद यही आ जाएगा
ये पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लर्निंग है ना, ये यही तीन चीजें हैं इसमें। माइंड को हमने पिछले पेज में कवर कर लिया, लेकिन उसके बाद तीन चीजें आती हैं: लर्निंग, रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। So we are saying the only purpose of education is transformation. We always keep saying this. And we will practice deep learning through three sacred steps. पहला है learning, दूसरा है realization और तीसरा है transformation. लर्निंग में क्या करना है? फोकस्ड स्टडी करनी है। रियलाइजेशन में क्या करना है? अनुचिंतन, एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल कॉन्टेम्पलेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन इज हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, लाइफ चेंजेस क्या हैं हमारे। सो इसी को हमें मास्टर करना है, इस प्रोसेस को। और इन तीनों से पहले माइंड को शांत करना है। कंट्रोल नहीं भी करते, शांत करना है, काम करना है। कम से कम अगर हम अपना एक केव बना लेंगे, वहां पे शांत रहेगा वो। ज्यादा शोर में तो ज्यादा ही भागता है। नेक्स्ट, यस। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में इसको कवर करेंगे। इसमें काफी हमें इसमें भी अनुचिंतन करने की जरूरत है इस प्रेजेंटेशन के ऊपर। इसको भी डीपली लर्न करके, डीपली कॉन्टेम्पलेट करके, इससे भी देखेंगे क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी हमारे साथ में। तो यू कैन क्लोज दिस। आज हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, नेक्स्ट टाइम इसको और डीपली जाएंगे। यू कैन ऑल प्रिपेयर योर ओन प्रेजेंटेशंस, योर ओन रियलाइजेशंस सो फार फ्रॉम दिस लर्निंग ऑफ टुडे। बिकॉज जितना ज्यादा हम इसमें चले जाएंगे कि हाउ टू लर्न, हाउ टू रियलाइज, हाउ टू हैव रियलाइज्ड नॉलेज, this is the key thing in life. What to learn and how to learn. Any questions? Any realizations? Anything that is coming in the heart? Yes, Akshat. प्रभु जी, जब आप वो केव के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, तो आई वाज इमेजिनिंग इट, तो इतना एक्साइटिंग लग रहा था। मतलब पूरे एक महीने तक दरवाजा सिर्फ खाने के लिए खुलेगा, बिल्कुल बेसिक बॉडी की नीड्स, एंड नथिंग, लिटरली नथिंग एल्स। एंड द होल मंथ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन आवर पर्पस ऑफ लाइफ। मतलब आई एक्चुअली गॉट गूज बम्स और समथिंग लाइक दैट। इतना मतलब आई वांटेड टू डू दैट, ऐसा लग रहा था। द नेक्स्ट लेवल है, वो पूरा रूम बिल्कुल व्हाइट कलर का है, व्हाइट फ्लोरिंग, व्हाइट वॉल, व्हाइट सीलिंग। उसके अंदर आपकी बुक के अलावा और आपके अलावा और कुछ भी नहीं है, एक भी वस्तु नहीं है। नथिंग, कुछ भी नहीं, सिर्फ सब कुछ व्हाइट। इमेजिन, और आपकी एक बुक और आप बस, और ज्यादा से ज्यादा एक पेंसिल और एक नोटबुक, नथिंग एल्स। सो दैट इज व्हाट माइंड नीड्स टू बी टेम्ड। उसको टेम करने के लिए वो कुछ भी चीज से एकदम अपनी कहानियां बना लेता है। कुछ भी देखता है तो वो भाग जाता है उसकी तरफ ही। तो उसको कुछ दिखाना ही नहीं कि मतलब, ये हम नहीं, ये बड़े बड़े योगीज करते थे ऐसा। ऐसा नहीं कह रहा कि ये बाहरी चीज है माइंड बाहर, लेकिन हमें प्रैक्टिस ऐसे करनी पड़ेगी। अगर अगर हम प्रॉपरली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें इन सब चीज को करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन क्योंकि अब सब कुछ तो अंदर ही है, हम चाहें तो अंदर ये सब बाहरी चीजों से डिस्टर्ब भी नहीं होंगे, ऐसा हो सकते हैं, लेकिन हम हो नहीं पाएंगे अभी। अभी प्रैक्टिकली जैसा अभी चल रहा है ना आज का युग, हमें हर चीज को जैसे युग धर्म के हिसाब से, युग के हिसाब से धर्म बने ना सारे, तो हमारे मन को भी इस युग के अंदर माइंड कंट्रोल भी युग बाय युग चेंज हो जाता है। इस युग में माइंड को चेंज करने के लिए इसको ज्यादा डंडे मारने की जरूरत है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला है कि इसको झाड़ू से और चप्पलों से पिटाई करो इसकी। ये इसकी वही पिटाई है। इसको केव में बंद कर देंगे ना तो इसकी पिटाई है वो। ऐसा तो है नहीं कि माइंड को हमारे हाथ में लेकर के इसकी पिटाई करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे? दिखता ही नहीं है, हाथ में नहीं आता। तो इसकी पिटाई ऐसे ही कर सकते हैं कि इसको केव में बंद कर दो, कुछ मत दो इसको सोचने के लिए, देखने के लिए, टेम्पटेशन के लिए। और नॉलेज को सामने खड़ा कर दो इसके, ये बुक है। अब नॉलेज इसको कंट्रोल कर लेगी।
यस इट्स लाइक वन एग्जाम्पल कि खिचड़ी किसी को पसंद नहीं आती, तो सिर्फ अपने आंखों के सामने खिचड़ी रख दो, जब बिल्कुल भूख लगेगी यार, अब तो बहुत भूख लग रही है, तो वो खिचड़ी ही खाएंगे हम खुशी खुशी। यस अब कहाँ गया वो माइंड जो 10 चीजें मांग रहा था? अब उसको वही खाना पड़ेगा. So this is really the right way of beating the mind, conquering the mind. इसको इतना कुछ दो ही मत, देखने के लिए सूंघने के लिए इतना कुछ अटेम्प्ट ही मत करो, इसको पकड़ लो. यस राधे, यू आर सेइंग समथिंग? नहीं? एनीबडी हु हैज सम रियलाइजेशन सो फार? जो भी कुछ लिखा है थोड़ा थोड़ा वही शेयर कर लो. सानवी, गोल्डन वर्ड्स फ्रॉम यू. ओ यस, गोपी. गोपी इज गोल्डन वर्ड्स. जी गोल्डन वर्ड्स तो नहीं है, बट जस्ट एक ऐसे थॉट आ रहा था कि मोर देन अदर्स आई माई सेल्फ आई एम अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन फॉर माई सेल्फ. मतलब अगर मैं सब कुछ बंद भी कर दूं बट अपने आप का माइंड ही शांत ना हो, एंड जैसे एक बच्चा होता है और कुछ भी अगर उसको बोलो कि फॉर एग्जाम्पल आपको ये नहीं करना, तो वो पक्का ही करेगा वो चीज. तो अगर मैं अपने आप को कुछ चीजों से क्रॉस कर दूं, नेगेशन कर दूं, तो माइंड बार बार उसी की तरफ भागेगा. तो उससे कैसे उसको सो सॉल्व कर आपको सकते हैं? आपको हर सोल की जर्नी अलग होती है डेफिनेटली. आप ये सोचिए कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए अगर ये नहीं तो क्या कर सकते हो सकता है ये आपके लिए एप्लीकेबल ना हो. डेफिनेटली दिस इज वेरी ग्रॉस, दिस वे इज वेरी ग्रॉस, बट इट वर्क्स फॉर एवरीबडी हु इज स्टिल एट ग्रॉस लेवल. जो ग्रॉस पे है उसके लिए वर्क करता है, और जो ग्रॉस को सरपास कर चुका है, मे बी दैट पर्सन माइंड इज नॉट आउट ऑफ कंट्रोल इवन इन द बिगेस्ट भीड़ ऑल्सो. अब प्रभुपाद जी को ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक बात ध्यान कीजिए, प्रभुपाद जी भी रात को 12:30 बजे उठ करके अपने डिक्टाफोन को लेकर के वो करते थे, जिस टाइम पे बिल्कुल शांति होती थी. उन्होंने अपना केव बनाया हुआ था. एवरी सेज यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर व्हाट, एंड स्टिल गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. किस लिए उठते हैं सब? क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल केव बनाना, शांति बहुत ज्यादा होती है. 12:30 Prabhupada ji would get up in the night. 2 hours only he will sleep. लेकिन फिर भी हो सकता है कि कोई और तरीका हो जिससे हम माइंड को शांत कर सकते हो. बट वी कैन प्रैक्टिस दिस. आई थिंक सेजेस हैव प्रैक्टिस दिस. वी कैन ऑल्सो प्रैक्टिस दिस. जरूरी नहीं है पूरे रूम को वाइट करना या कुछ, वो ठीक है, बट वी कैन जस्ट लॉक अवर सेल्फ एंड एक संकल्प लेकर के, स्ट्रॉन्ग संकल्प लेकर के, और भगवान से प्रार्थना करके कि मुझे 2 घंटे की कंसंट्रेशन दे दो, मुझे ये बुक पढ़नी है, मुझे ये कॉन्सेप्ट समझना है, मुझे डीप जाना है इसके अंदर. जैसे हम चैंटिंग के लिए करते हैं, चैंटिंग करने से पहले हम एब्जॉर्प्शन की जैसे बात करते हैं, वैसे नॉलेज के लिए भी एब्जॉर्प्शन की बात करनी है, बिकॉज चैंटिंग ऑल्सो विल बी प्योरिफाइड विद दिस नॉलेज ऑफ एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन की हैबिट बन गई तो चैंटिंग भी प्योरीफाई जब ही होगा. लिव लाइफ एवरी आवर एक्चुअली लाइक चैंटिंग ओनली. हर चीज को उतनी डेप्थ से देखना जितनी डेप्थ से हम चैंटिंग को देखने की कोशिश करते हैं. उतना एब्जॉर्ब्ड बीइंग बनना है. यस प्रभु जी, आई थिंक प्रैक्टिस इज नीडेड, क्योंकि जैसे आप कह रहे थे हर चीज को चैंटिंग की तरह इम्पोर्टेंस देना है. तो अभी प्रॉब्लम ये है कि चैंटिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो मतलब प्रैक्टिस नहीं है इस चीज की, तो इसलिए शायद सोच के डिफिकल्ट लग रहा है, बट प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा. यस. a lot of books are there in these directions. I think we should read that. देखिए, हम लोग कितनी सारी मटेरियल बुक्स स्कूल एजुकेशन की पढ़ रहे हैं कुछ लेने के लिए, लेकिन इससे बहुत अच्छी बुक्स कुछ अच्छे, ये सब भी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक्स लिखी हैं. दे आर गुड स्कॉलर्स, बट देर आर ऑल्सो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ स्कॉलर्स इन द वर्ल्ड.
है ना। जैसे प्रभुपाद जी एक स्कॉलर थे, विवेकानंद जी एक स्कॉलर थे। अब ये उनकी डिग्री में कितना फर्क है, जो प्रभुपाद जी देखे गए और जो दूसरे स्कॉलर देखे गए उसमें डिग्री का बहुत बड़ा फर्क था। तो ऐसे ही मटेरियल एजुकेशन जो दे रहे हैं उसमें भी बहुत अलग अलग डिग्रीज के स्कॉलर्स हैं। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर एक बहुत अच्छी बुक लिखी गई है, द प्रैक्टिसिंग माइंड। तो वो बुक्स जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमारा वो माइंड उससे टेम होता है। दे आर दीज बुक्स आर नॉट मेंट फॉर द सोल, दे आर ऑल मेंट फॉर द माइंड। बट वंस द माइंड इज टेम्ड, सेल्फ रियलाइजेशन विल ऑल्सो बिकम ईजियर। सो ये प्रैक्टिस करके ही होगा डेफिनेटली, लेकिन प्रैक्टिस करना सीखना भी एक स्कॉलर ने सिखाया है कि हाउ टू प्रैक्टिस। भगवान ने भी प्रैक्टिस ही बोला है, अभ्यास, है ना। जब चंचला ही मना कृष्णा बोला तो भगवान भगवान ने जवाब में तो अभ्यास ही दिया। तो लेकिन वो प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो भगवान ने नहीं सिखाया गीता में, हाउ टू प्रैक्टिस। फॉर दैट देयर आर बुक्स, हाउ टू क्रिएट अ प्रैक्टिसिंग माइंड। For that there are books. So yes. Anybody else who would like to share the notes or something that you have realized today? Was it some useful or useless? Yes, Sanvi. मैं बस ये सोच रही थी कि इन द पास्ट 1 ईयर और 1.5 ईयर हमने कितनी बुक्स पढ़ी होगी। मैंने ऐसे नंबर में गिनना चाहे तो 10 बुक पढ़ ली, 11 बुक पढ़ ली एक साल में। बट उस एक भी बुक को उतना डीपली नहीं पढ़ा कि कुछ भी एक्शन में आए। तो आई वाज थिंकिंग दैट इसका रिजल्ट होता है कि एक तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है, और एक बस अपने माइंड को ये लगता रहता है कि हाँ बहुत अच्छा, हम तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, इतनी बुक्स पढ़ते हैं, नोट्स पे अच्छे अच्छे बना लेते हैं। तो एक तरह से ग्रेटिफिकेशन हो रही है, इंटेलेक्चुअल ग्रेटिफिकेशन हो रही है, कुछ आ, उसका रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है। तो आई वाज थिंकिंग कि दिस इज कि वो फिर टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ अगर हमने उसको अप्लाई नहीं किया अपनी लाइफ में, रियलाइज नहीं किया, तो वो तो टाइम वेस्ट है एक तरह से। यस, बिल्कुल यही होता है एजुकेशन। द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन। उसके आगे अगला सेंटेंस मैंने काट दिया है आज के प्रेजेंटेशन में से। अगला सेंटेंस था अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। एक्चुअली इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। जितना भी हम 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल स्कूल में लगा देते हैं, 20 साल लगा देते हैं, और कुछ समझ में नहीं आया, कुछ काम नहीं आया, इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम। कितने लाइफ के 25 साल या 20 साल हमने लाइफ के इस चीज को दे दिए, जो ना तो जिसका व्हाट ठीक था, व्हाट टू लर्न, ना जिसका हाउ ठीक था, हाउ टू लर्न। अगर आप जो पढ़ रहे हो उसका व्हाट अगर ठीक है और आपका हाउ थोड़ा डिफेक्टेड भी है, अगर आपने एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ी जो आपने बताया, लेकिन आपको 2-3 बार पढ़ने के बाद 2-4 कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गए, तो इट्स गुड, कुछ कम से कम व्हाट तो आपका ठीक ही था। तो लेकिन यहाँ 20-20 साल तक तो व्हाट भी ठीक नहीं है, पढ़ क्या रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं वो भी गलत है। यस सान्या। Yeah, I just want a clarification as well as a direction, like reading with absorption. like हम एक लाइन को बहुत फोकस्ड फिर उस पर नोट्स बनाए, मतलब आई जस्ट वांट अ डायरेक्शन कि वो एब्जॉर्प्शन कैसे लाई जाए, कि अभी तो बिल्कुल अभी नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में ये प्रेजेंटेशन जब कंप्लीट होगी ना, तो काफी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका एक फॉर्मेट, इसका एक टेम्पलेट बनाया है मैंने। ये जो प्रेजेंटेशन भेजी है ये ऑलमोस्ट 17 पेजेस की है। इसमें जैसे हम आगे जाएंगे तो हाउ टू लर्न, हाउ टू रियलाइज, हाउ टू ट्रांसफॉर्म, फिर वीकली हम लोग को कॉन्टेम्पलेट कैसे करना है, डेली रिफ्लेक्शन कैसे करनी है। एंड दिस इज ऑल्सो माई वेरी क्विक नोट टुडे। मैंने पहले कभी बनाया नहीं था इसको, ये जो थोड़ा बहुत मैं करता हूँ मैंने वो लिख दिया, लेकिन इसको भी हम मिल करके इम्प्रूव करेंगे। आप ही लोग मुझे बताओगे इसको ऐसा करना चाहिए, इसको और अच्छा करते हैं, तो इसको मिलके एक अच्छा सा टेम्पलेट बनाएंगे हम दुनिया के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन लर्निंग सिखाने के लिए। वी विल ऑल बी टुगेदर इन दिस। So let's practice this, all of us together, and then we will create a very nice framework for the world. Because आप सोचिए ना कि एजुकेशन बनी है, लेकिन एजुकेशन लेते कैसे हैं, बनाई नहीं। हर
स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट्स लगे हैं एजुकेशन देने के लिए, लेकिन उसको एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, उससे चेंज कैसे लाते हैं, उसका पर्पस क्या है, वो किसी ने सिखाया ही नहीं है। तो आई थिंक अगर ये स्ट्रीम को लेकर के कोई बच्चा तैयार हो जाए या बच्चे तैयार हो जाए, तो ये इनफ है अपने आप में लाइफ चलाने के लिए। वी कैन जस्ट ओपन स्कूल्स टू टीच हाउ टू लर्न, not what to learn. Whatever you want to learn is your decision, but how to learn. तो इसके अच्छे से फ्रेमवर्क बना लेंगे। एनीबडी एल्स? शची जी आप चुप रहते हो। वो कह रही मैं चुप ही अच्छी हूँ। यस जानवी, शेयर योर रियलाइजेशन, शेयर योर गोल्डन वर्ड्स। Honestly, आज का पूरा सेशन आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इवन एग्जाम से एक दिन पहले आई एम नॉट एबल टू गो इनटू दैट केव। तो मेरे लिए तो दिस इज सो डिफिकल्ट टू एक्चुअली रिलेट टू, एंड ऐसे लगता है कि काश मैं डीप जा पाती, but at the same time it's so difficult. No, that's the only thing I've been thinking. डोंट वरी, यू हैव योर मामा विद यू। विल आपको सर से पकड़ के अंदर धक्का देके डाल देंगे डीप। गो डीप, गो डीप, गो डीप। यू विल गो वेरी डीप, and you already go deep. You have a very, very deep mind cells. आपके पास हैं already. You don't know, but your way of going deep is very different. तो आपकी प्रोसेस अलग होगी, लेकिन आप भी डीप जाते हो। ठीक है, तो we'll conclude this here, and then we'll meet again on Thursday evening and go deeper. ठीक है, okay, thank you very much. Hare Krishna.